Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our chapter number 5. Right? हम लोगों ने हमारा chapter number 5 complete कर लिया है with textbook exercise, right? But in today's session, I am going to introduce you chapter number 6, living and non-living things. मैं आज आपको chapter number 6 introduce कराऊंगी. कौन सा है chapter number 6? क्या नाम है उसका? Living things and non-living things. But kids, before I start explaining all the things regarding this chapter, I just want you to introduce you vocabulary words and meanings. मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर के vocabulary words और मीनिंग्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ही ईजी रहेगा. ओके सो लेट्स बिगिन दैट. सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? वोकेब्युलरी वर्ड्स. एक एक वोकेब्युलरी वर्ड को हम 5 टाइम्स प्रोनाउंशिएट करेंगे. उस वजह से आपके प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे होंगे और आपको स्पेलिंग्स भी आ जाएंगे. क्लियर किड्स? नाउ लेट्स बिगिन दैट. नंबर 1, मूवमेंट. MOVEMENT. 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 Number 2, fins. 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 Now number 3, growth. 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 Now number 4, lifespan. 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 Now number 6, gills. 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 Number 7, reproduction. 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 Now next, number 8, hatch. 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 Now number 9, surrounding. 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 Now next, number 10. Number 10 is mimosa.
M-I-M-O-S-A, mimosa. M-I-M-O-S-A, mimosa. M-I-M-O-S-A, mimosa. M-I-M-O-S-A, mimosa. M-I-M-O-S-A, mimosa. Number 11, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. B-R-E-A-T-H-E, breathe. Number 12, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. Now next, number 13, cockroach. C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach. Now next, number 14, ground. G-R-O-U-N-D, ground. G-R-O-U-N-D, ground. G-R-O-U-N-D, ground. G-R-O-U-N-D, ground. G-R-O-U-N-D, ground. Now next, number 15, last one, wings. W-I-N-G-S, wings. W-I-N-G-S, wings. W-I-N-G-S, wings. W-I-N-G-S, wings. W-I-N-G-S, wings. I hope so you understand, kids. Now kids, let's pronunciate 3 times. Okay? तो आपको easily pronunciation भी अच्छी तरह से आ जाएगा. Let's begin that. Number 1, movement. 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 Number 2, fins. 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 Number 3, growth. 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 Number 4, lifespan. 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 Number 5, stomata. 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 Number 6, gills. 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 Number 7, reproduction. 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 Number 8, hatch. 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 Number 9, surrounding. 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 Number 10, mimosa. Mimosa and mimosa. Number 11, breathe. 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 Number 12, mosquitoes. 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 Number 13, cockroach. 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 Number 14, ground. 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 Number 15, wings. 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 Now kids, last time, let's pronunciate it and let's read it, okay? Number 1, movement. M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Number 2, fins. F-I-N-S, fins. Number 3, growth. G-R-O-W-T-H, growth. Number 4, lifespan. L-I-F-E-S-P-A-N, lifespan. Number 5, stomata. S-T-O-M-A-T-A, stomata. Number 6, gills.
GILLS, gills. Number 7, reproduction. REPRODUCTION, reproduction. Number 8, hatch. HATCH, hatch. Number 9, surrounding. SURROUNDING, surrounding. Number 10, mimosa. MIMOSA, mimosa. Number 11, breathe. BREATHE, breathe. Number 12, mosquitoes. MOSQUITOES, mosquitoes. Number 13, cockroach. COCKROACH, cockroach. Number 14, ground. GROUND, ground. Last one, number 15, wings. WINGS, wings. So kids, here we completed our vocabulary words and meanings. So kids, now let's begin our meanings. Okay, हमने vocabulary words कर लिए, तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? मीनिंग्स. आपको मीनिंग्स की इमेज क्लियर है, राइट? सो मेरे साथ साथ आप अच्छी तरह से रीड करके मुझे समझोगे. ओके, तो आपको आगे इसी चैप्टर में कोई भी ऐसा मीनिंग आएगा जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको इजीली याद आ जाएगा. सो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन करोगे. ओके, नंबर 1, लाइफ स्पान. द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच एन एनिमल और अ प्लांट कैन लिव. लाइफ स्पान किसे कहते हैं? कोई भी कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, वो जितने टाइम तक जिंदा रहता है तो वो क्या हुआ? वो उसका लाइफ स्पान हुआ. क्या हुआ? लाइफ स्पान. कोई भी एनिमल है, कोई किसी का लाइफ स्पान 8 to 10 ईयर्स है, किसी का 12 to 15 ईयर्स है, किसी का 15 डेज होता है जैसे बटरफ्लाई का. कोई एनिमल है वो 6 मंथ 8 मंथ्स ऐसा रहता है, राइट? तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका लाइफ स्पान बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान बोलेंगे. किड्स, कोई भी प्लांट है, प्लांट तो बहुत टाइम तक जिंदा रहता है, राइट? नीम ट्री, पीपल ट्री, राइट? तो उसके भी अलग अलग डिफरेंट लाइफ स्पान होते हैं. तो भी क्लियर हुआ व्हाट इज लाइफ स्पान. कोई भी एनिमल या तो कोई भी प्लांट का कोई भी लेंथ पीरियड हो, लेंथ की टाइम मेजर करनी हो तब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान. क्लियर किड्स? नाउ नंबर 2, स्टोमेटा. स्मॉल होल्स on leaves through which air enters and helps a plant breathe. Kids, we are human beings, right? हम ब्रीद करते हैं, इसी वजह से हम जिंदा है, राइट? हम अपनी 2 मिनट्स नोज क्लोज कर देते हैं ना, तो हम ब्रीद नहीं कर पाते. मतलब कि हम नहीं रह सकते ब्रीदिंग ऑक्सीजन के बिना, राइट? ब्रीद किए बिना एयर में. तो जैसे वी नीड एयर टू ब्रीद, जैसे बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स को भी ब्रीद मतलब एयर चाहिए ब्रीद करने के लिए. जैसे हम ब्रीद कैसे करते हैं? नोज से करते हैं, राइट? तो प्लांट्स में एक छोटे लीफ में होल्स होते हैं जिससे प्लांट्स वो भी ब्रीद करता है, राइट? तो उस होल्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. क्या बोलेंगे उस होल्स को हम? स्टोमेटा. जिससे वो ब्रीद करता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. जिसे हम ब्रीद करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स. क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो प्लांट्स जिससे ब्रीद करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. स्मॉल होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच एयर एंटर्स एंड हेल्प्स द प्लांट ब्रीथ. एयर जिसके अंदर एंटर होती है उस हॉल में से, उस हॉल को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. नाउ नंबर 3, reproduction. The method of producing babies, young animals or plants. Reproduction किसे कहते हैं किड्स?
कोई भी एक एनिमल है वो अपने जैसे ही दूसरे एनिमल को बर्थ देता है, जन्म देता है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। काव है वो काफ को बर्थ देती है, राइट। डॉग है वो पपी को बर्थ देता है। कैट है वो किटन को बर्थ देती है, राइट। लायन है वो कब को बर्थ देता है, आई मीन लाइनस। तो वो क्या हुआ? एक रिप्रोडक्शन है। क्या हुआ? रिप्रोडक्शन है। कभी देखा गधे के बच्चे ने गाय के बच्चे को जन्म दिया? नहीं, जो जैसा है उसके जैसा ही उसको रिप्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। कोई भी प्लांट हो, चीकू का प्लांट है, हम उसमें से टोमेटो ग्रो होंगे? टोमेटो ग्रो होंगे? नहीं ग्रो होंगे, राइट। बिकॉज हमने वहाँ पे चीकू का सीड डाला है, तो वहाँ से टोमेटो कैसे ग्रो होगा? टोमेटो में कभी चीकू ग्रो होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिसका हम करेंगे उसका ही रिप्रोडक्शन होगा, राइट। तो जैसे एनिमल्स में होता है, बिल्कुल वैसे प्लांट्स में भी होता है। जिसके सीड हम उसमें डालेंगे उसका रिप्रोडक्शन होगा। कभी दूसरे सीड से दूसरे सीड का कुछ भी होता नहीं है, जो हम डालेंगे उसका ही रिप्रोडक्शन होगा, राइट। बिल्कुल ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, हमारे में भी रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बींग्स भी बर्थ देते हैं, राइट। छोटा बच्चा आता है ना, वो भी अपने मतलब ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ह्यूमन को बर्थ देते हैं, राइट। तो जैसे जैसे जिसका है उसका रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, hatch, to come out of an egg। hatch मतलब एग जो धीरे धीरे टूट के से उसमें से कोई भी बेबी बर्ड बाहर आता है, राइट। चिकन बाहर आता है बेबी बर्ड का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैच। कभी आपने किड्स देखा है? कोई भी एग होता है, वो धीरे धीरे क्रैक होता है, क्रैक होता है, क्रैक होता है, फिर उसमें से उसका सर निकलता है, फिर पूरा एग टूट जाता है और बेबी बर्ड बाहर आता है, राइट। तो वो जो प्रोसेस है, एग धीरे धीरे टूटता है, उसमें से बेबी बाहर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग। टू कम आउट ऑफ एन एग, एग के बाहर से आप निकलोगे, कोई भी बच्चा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वो हैच, वो हैचिंग मतलब हैच हो रहा है, हैच हुआ, राइट। क्लियर किड्स? नाउ लास्ट वन, number 5, mimosa। It is a type of a plant. When we touch them, it closes its leaves. Mimosa is a type of a plant. Mimosa एक प्लांट का टाइप है, जिसको हम टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। वो हमने सुना है, टच मी नॉट प्लांट। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम टच करते हैं ना, वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है, राइट। तो मिमोसा इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ प्लांट विच क्लोज द लीव्स व्हेन वी टच। हम उसको टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, राइट। नाउ किड्स, लेट्स रिवाइज मीनिंग्स। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग्स को। नंबर 1, लाइफ स्पान, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच एन एनिमल और ए प्लांट कैन लिव। कोई भी एक टाइम होता है, उसको लेंथ में मेजर करने से हमें पता चलता है कोई भी एनिमल और प्लांट कितने टाइम तक जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पान क्या है। सॉरी, हमारे ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पान पता है किड्स आपको? 60 to 80 ईयर्स। पहले 80 ईयर्स के पहले कितना था? 80 to 100। मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं उसका मेजर करते हैं हम लोग, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पान बोलेंगे। नाउ नंबर 2, स्टोमेटा, स्मॉल होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच एयर एंटर्स एंड हेल्प्स अ प्लांट ब्रीथ। स्मॉल होल्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिससे प्लांट के अंदर एयर एंटर होती है और वो इजीली ब्रीथ करते हैं। क्लियर? नाउ नंबर 3, रिप्रोडक्शन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, यंग एनिमल्स और प्लांट्स। कोई भी छोटे छोटे बच्चे को बर्थ देना मतलब उसको रिप्रोड्यूस करना। क्या करना? उसको रिप्रोड्यूस। बेबी प्लांट्स होते हैं, बेबी एनिमल्स होते हैं, इवन हम ह्यूमन बींग्स में भी छोटे छोटे बेबीज होते हैं, हम जिसको खेलते हैं ना, राइट। तो उससे क्या होता है कि कोई भी थिंग्स ने अपने जैसे बच्चे को बर्थ दिया, मतलब रिप्रोड्यूस किया।
क्लियर? नंबर 4 हैच, टू कम आउट ऑफ एन एग। कोई भी बच्चा एग में से अगर बाहर निकल रहा है मतलब वो हैच किया उसने। क्लियर? नाउ नंबर 5 मिमोसा, इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट व्हेन वी टच देम इट क्लोजेज इट्स लीव। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसको हम टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है। क्लियर किड्स? नाउ लेट्स ओनली रीड इट वंस, ओके? नंबर 1 लाइफ स्पैन, the length of time for which an animal or a plant can live. Number 2 stomata, small holes on leaves through which air enters and helps a plant breathe. Number 3 reproduction, the method of producing babies, young animals or plants. Number 4 hatch, to come out of an egg. Number 5 mimosa, it is a type of plant when we touch them it closes its leaves. Clear kids? I hope so you understand vocabulary words and meanings of this chapter easily, right? तो आपको थ्रू आउट द चैप्टर कोई भी वर्ड को रीड करने में या तो किसी भी वर्ड का मीनिंग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो किड्स, इन दिस चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें पहला वाला टॉपिक है मूवमेंट। जैसे कि हम लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट करते हैं, राइट? हमारे लिविंग थिंग्स इजीली मैं सी आई एम मूविंग वन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? मतलब मैंने मूवमेंट किया है। फिर हम ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ भी होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है। तो इसी चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस के रिगार्डिंग मूवमेंट भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मूवमेंट कर पाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं कर पाते, बट अगर हम उसको मूवमेंट करवाएंगे तो वो डेफिनेटली करेगा। फिर है ग्रोथ, हमारा ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होता नहीं है। फिर है लाइफ स्पैन, जैसे कि हम कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका डेफिनेटली एक कंफर्म लाइफ स्पैन होता है, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। फिर है नीड फॉर एयर, किसको किस टाइप मतलब किसको एयर की नीड होती है? जैसे लिविंग थिंग्स को होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की नीड होती नहीं है। तो ये सब कुछ इसी चैप्टर में हम करेंगे। नीड फॉर फूड, हमें फूड की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। फिर है रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं, राइट? फिर है फीलिंग्स, चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, फीलिंग्स भी चेंज होती है हमारे सराउंडिंग्स में। जैसे मैंने अभी मीनिंग में बोला ना, मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट को हम टच करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर देता है, मतलब फीलिंग्स जो होती है उसमें वो चेंज होती है। तो इसी चैप्टर में आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द थिंग्स, राइट? सो किड्स, मैं आपको वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स सेंड किया है PDF में, आपको CW में कॉपी करना है अच्छे राइटिंग में। जैसा दीदी ने CW बनाई है बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जैक्टली वैसी ही CW बनानी है विथ गुड हैंड राइटिंग। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो किड्स तो डेफिनेटली लाइक कर देना। ओके, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।